Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope so you will be fine. Today is our 8th lecture of Pre-3 English. We will start from General English. Open the page number 30. Page number 30. Today the date is June 1st, 2020 and the day is Monday. Okay. The topic is fill in the blanks. Fill in the blanks. Students, there are some pictures on this page and their name in a block. Okay, we will look at the picture, search its name and write its name on this line. Okay, the first of all we have a picture of bird. Bird. This is the name of a bird. B-E-R-D, bird. We will write the bird here. Okay, bird. The next one is balloon. Balloon. Search the balloon. This one. B-A-L-L-O-N, balloon. We will write the balloon here. Okay. The next one is window. Window. Search the window. This one is window. W-E-N-D-O-W, window. Window. We will write the window on this line. Okay. The next one is chair. Chair. Ch-A-E-R, chair. We will write the chair on this line. Okay. Bird, balloon, window, chair. Okay. Come to the next page. Page number 31. The topic is circle the correct word. Circle the correct word. The first one has been done for you. The first one has been done for you. जो इसमें इस पेज में हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, हमारे पास उनके ऑप्शंस हैं. यही जो है वर्क जो है वो आप इस पेज में भी कर चुके हैं, ठीक है, और पीछे बहुत सारे पेजेस में आप ये वर्क कर चुके हैं, ठीक है. इसलिए जो है इस पेज में भी आप ये कर चुके हैं, ठीक है, इन पेजेस में भी कर चुके हैं, तो इसलिए आपकी इन पेजेस को करने की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है. इसलिए आपको इस पेज को देखते ही समझ जाना चाहिए कि इस पेज को हमने क्या करना है, ठीक है. इस पेज पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं और नीचे हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है. हम पिक्चर को देखेंगे और उसको मतलब ऑप्शन को रीड करेंगे और फिर जो है वो उसका जो राइट ऑप्शन होगा उसको हम सर्कल करेंगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द पिक्चर ऑफ अ डॉग. डॉग, ठीक है. ओके, वी हैव 2 ऑप्शंस. रीड द ऑप्शंस. डॉग, डॉग. B-E-R-D, bird. Dog, bird. This is a picture of dog, so we will circle the dog. Okay. The next one is fish. Fish. Okay, read the options. In hen, if e ish, fish. This is a picture of fish, so we will circle the fish. Okay. Rabbit. Rabbit. This is the picture of rabbit. Read the options. Ir a b b eat rabbit. H o ir is a horse. Rabbit, horse. This is a picture of rabbit, so we will circle the rabbit. Okay. The next one is monkey. Read the options. P a k o k k, peacock. Peacock. M o n k a y, monkey. Peacock, monkey. Look at the picture. This is the picture of monkey, so we will circle the monkey. Okay. The next one is lion. Lion. Read the options. O-I-L, all. L-E-O-N, lion. All, lion. This is the picture of lion, so we will circle the lion. Okay. Look at the next picture. Hen. This is a picture of hen. Read the options. H in hen. D o in k a y, donkey. Hen, donkey. This is the picture of a hen, so we will circle the hen.
ओके, डॉग, फिश, रैबिट, monkey, lion, hen. Okay, come to the next page, page number 32. Page number 32. The topic is color the things that you can eat. हमने इस पेज पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं. ओके, तो हमने कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जिनको हम खा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खा सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं खा सकते. ठीक है, तो जो है हमने उन पिक्चर्स को कलर करना है जिनको हम खा सकते हैं. ठीक है, चिकन भी हम खा सकते हैं, फिश भी हम खा सकते हैं, एप्पल भी हम खा सकते हैं. इन तीनों को हम कलर करेंगे. काइट भी हम नहीं खा सकते, ट्री को भी हम नहीं खा सकते. ठीक है, इन दोनों को हम कलर नहीं करेंगे. उसके बाद हमारे पास है बनाना भी हम खा सकते हैं, बन भी हम खा सकते हैं, और आइसक्रीम भी हम खा सकते हैं. ठीक है, इस पेज में सारी पिक्चर्स, सिर्फ इन 2 पिक्चर्स के अलावा बाकी सब पिक्चर्स ऐसी हैं जिनको हम खा सकते हैं. ठीक है, इसलिए इन दोनों पिक्चर्स में आप कलर्स नहीं करेंगे, बाकी सब पिक्चर्स में जो है वो आप कलर करेंगे. ठीक है, ये आपकी एक कलर की एक्टिविटी है. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. Page number 33. On this page we have the topic of join. Mother with the baby. We will join the mother with its baby. Okay. On this page we have the name of some animals at one side, and the other side we have the name of the babies of these animals. Okay. The activity is that we will match the नेम ऑफ द एनिमल विद इट्स बेबी नेम. ओके, हमने मतलब एक साइड पे हमारे पास मदर नेम्स हैं, दूसरी तरफ बेबीज नेम है. उन्हीं एनिमल्स के बेबीज के नेम है. ठीक है, हमने उस एनिमल को उसके बेबी नेम के साथ मैच करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल इज ह इन हैन. ओके, द बेबी ऑफ द हैन इज चीक. च ई ख क चीक. हैन मुर्गी, चिक चूजा. ठीक है, तो हैन मदर नेम है और चिक जो है वो इसका बेबी नेम है. ठीक है, तो हम हैन को जो है वो चिक के साथ मैच करेंगे, और मैचिंग हमने कैसे करनी है, स्केल की हेल्प से. ठीक है, लाइक दिस. ऐसे हम स्केल रखेंगे और इसको ऐसे मैच करेंगे. ठीक है, जो भी आपकी मैचिंग की एक्टिविटी होती है उसको आप स्केल की हेल्प से मैच किया करें. इस तरह से मैचिंग जो है वो बहुत नीट होती है और पेज जो है वो बहुत नीट लगता है. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज हॉर्स. h-o-r is a horse. The baby of the horse is foal. f-o-a-l foal. Horse, foal. Cat. k-a-t cat. Cat, kitten. k-e-t-t-in kitten. The baby of the cat is kitten. Dog. d-o-g dog. The baby of the dog is pup. p-u-p pup. Dog, pup. The next one is duck. d-u-c-k duck. Duck, duckling. d-u-c-k-l-e-n-g duckling. Duck, duckling. ठीक है, इसी तरह आपने जो है इन सारे मदर नेम्स को उनके बेबी नेम्स के साथ मैच करना है. ओके, रीड करते हैं दोबारा से. हैन, चिक, हैन, चिक, हॉर्स, फॉल, हॉर्स, फॉल, कैट, किटन, कैट, किटन, डॉग, पप, डॉग, पप, डक, डकलिंग, डक, डकलिंग. ठीक है, ये हमारे पास एक्टिविटी है. ठीक है, आपने इसको बार बार रीड करना है और इसको याद भी करना है. ठीक है, ये हमारा जो है वो जनरल इंग्लिश का 3 डेज का वर्क है. हम 1 वीक में 3 डेज जो है वो जनरल इंग्लिश का काम करते हैं और जो है वो 3 डेज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का काम करते हैं. ठीक है, 1 डे, एक दिन में आपने एक पेज डन करना होता है. ठीक है, अब इस पेज में जो है वो बुक में पिछले पेजेस जो हैं वो सारी एक्टिविटीज़ बुक पे ही करने वाली हैं. ठीक है, उसमें आपका नोटबुक का कोई भी वर्क नहीं है.
लेकिन ये वाला जो पेज है, पेज नंबर 33, इसका कॉलम जो है वो आप नोटबुक पे राइट करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले डेट राइट करेंगे, उसके बाद टॉपिक राइट करेंगे, और इसी तरह से जो है अपने नोटबुक के एक तरफ जो है वो मदर नेम्स राइट करेंगे, दूसरी तरफ बेबीज़ नेम राइट करेंगे, और इसी तरह जो है वो इनको स्केल की मदद से मैच कर देंगे, ठीक है। ये आपका जनरल इंग्लिश का होमवर्क है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द बुक ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, पेज नंबर 18. The topic is these, those. These का मतलब होता है ये, और those का मतलब होता है वो, ठीक है। इसके बारे में आप पहले भी जो है वो पिछले पेज में भी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट, ये और वो, ये जो है वो पास की चीज़ के लिए और वो दूर की चीज़ के लिए, इसके लिए दिस और दैट इस्तेमाल हुआ था पिछले पेज में, ठीक है। इसकी एक्टिविटी जो है वो आप ये कर चुके हो, इसका कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हो, दिस और दैट। लेकिन दिस और दीज और दैट और दोस, इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे हमने सीखा था दिस इज़ और दैट इज़ का कॉन्सेप्ट, दिस इज़ ये, दैट इज़ वो, ठीक है। इसी तरह दीज और दोज का मतलब भी यही होता है, लेकिन इनके दरमियान डिफरेंस ये है कि दिस जो है वो, दिस और दैट जो है ये सिंगुलर थिंग्स के लिए आता है, ठीक है, वाहिद चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए, ठीक है। और दीज और दोज जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल थिंग्स के लिए, ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है। इनके दरमियान ये डिफरेंस है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इम य माई, इन ए, इम ए, नेम, ई इस ई, इम ई, सीमी। माई नेम इज सीमी, आई एम अ गर्ल। अब ये बच्ची जो है वो, इसका नाम सीमी, और ये अपना इंट्रोडक्शन करा रही है कि मेरा नाम सीमी है और मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। आगे जो है वो हमारे पास कुछ चीज़ों के नेम है जिसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें वही हैं जो आप पिछले पेज पे इनके नेम याद कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारी डेली, जब हम स्कूल जाते हैं या घर में रहते हुए हमारे कुछ डेली रूटीन के ड्रेसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में हमें जो है वो इसमें इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। सीमी जो है वो अपनी चीज़ों के बारे में हमें इंट्रोडक्शन दे रही है, ठीक है। इसमें वो देखें कि वो करीब की चीज़ की तरफ इशारा कर रही है और उसके लिए दीज इस्तेमाल हो रहा है, दूर की चीज़ के लिए दोज इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आगे हम इसको रीड करते हैं। माई नेम इज सीमी, आई एम अ गर्ल। ठ ए इस ए दीज, ए इर ए आर। दीज आर, im your my, ir e berber or in is ribbons. These are my ribbons. In the end, her or is those. Ir are, im your my, is ir is skirts. These are my ribbons and those are my skirts. अब इसमें देखिए कि हम जो है वो एक और भी इसमें कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, वो है एंड, ठीक है। एंड का मतलब होता है और ये आपको मैं पीछे भी इसका कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ, ठीक है। आप इसकी एक एक्टिविटी भी कर चुके हैं, ठीक है। तो एंड जो है वो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये मतलब जैसे ये है, दीज आर माई रिबन्स, दोज आर माई स्कर्ट्स। अब इसके दरम्यान अगर हम एंड नहीं लगाएंगे तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, लेकिन जब हम इनमें एंड लगा देंगे तो ये पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। दीज आर माई रिबन्स एंड those are my skirts. The next one is is these, ir are, im my, is is socks, in the end, is those, ir are, im my, ish is shoes. These are my socks and those are my shoes. Is these, ir are, im my, if ir is frogs. These are my frogs. In the end, is those, ir are, im my, is blouses. These are my frogs and those are my blouses. Okay, read again. My name is Simi. I am a girl. These are my ribbons and those are my skirts. These are my socks and those are my shoes. These are my frocks and those are my blouses.
अब यहाँ पे देखें कि जो करीब की चीज़ के लिए थी, जैसे ये रिबन है तो रिबन्स के लिए दीज इस्तेमाल हुआ है, रिबन्स जो हैं वो करीब हैं, और स्कर्ट्स जो हैं वो दूर हैं, उसके लिए दोज इस्तेमाल हुआ है। ये रिबन्स हैं एंड दोज आर माई स्कर्ट्स, और वो मेरी स्कर्ट्स हैं। जो दूर की चीज़ के लिए उसके लिए दोज इस्तेमाल हुआ है, और जो करीब की चीज़ है उसके लिए दीज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। द टॉपिक इज प्लूरल्स। प्लूरल्स होती हैं जमा, ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, प्लूरल्स इस पेज पे हम सीखेंगे कि प्लूरल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए हम जो है वो किसी भी सिंगल चीज़ के साथ इस या ए इस लगा देते हैं। ठीक है, इस या ए इस लगाने से कोई भी सिंगल चीज़ जो है वो प्लूरल बन जाती है। ठीक है, वो ज़्यादा चीज़ों में तब्दील हो जाती है। ठीक है, अब इस पेज पे हमारे पास एक एक्टिविटी है। ठीक है, आस्क क्वेश्चंस एंड गिव आंसर्स। ठीक है, इस पेज में पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों से अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें रख लें जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो, लाइक कैंडीज, चॉकलेट्स, पेंसिल्स भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो बच्चों से क्वेश्चन पूछें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर दीज, ये क्या है, ये क्या हैं। दीज जो है वो ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट आर दीज, ये क्या हैं। अब बच्चे आंसर करेंगे दीज आर कैंडीज, ये कैंडीज हैं। ठीक है, बस। नेक्स्ट है फिर पेरेंट्स क्वेश्चन करेंगे आर दीज कैंडीज, बच्चा आंसर करेगा यस दीज आर कैंडीज, हाँ ये कैंडीज हैं। ठीक है, द नेक्स्ट फिर क्वेश्चन हमारे पास है आर दीज चॉकलेट्स, बच्चा आंसर करेगा नो दीज आर नॉट, मतलब ये चॉकलेट्स नहीं है, ये तो कैंडीज हैं। ठीक है, ये हमारे पास पूरी एक एक्टिविटी है। ठीक है, अगर हम इस एक्टिविटी को बच्चों के साथ कर लेंगे तो ये बच्चों का जो है वो कॉन्सेप्ट, प्लूरल्स के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद जो है वो हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं और उसके नेम्स हैं, वो हम रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है फ्लावर्स, आप पिक्चर को देख के भी उसका नेम रीड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लावर्स, इफ इल ओ वो ए इर इस, फ्लावर्स। इस पेज में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जो हैं वो प्लूरल्स हैं, क्योंकि उनके साथ इस या ए इस लगा हुआ है। ठीक है, जिस भी वर्ड के साथ इस आ जाए तो वो प्लूरल बन जाती है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज फ्लावर्स, इफ इल ओ वो ए इर इस, फ्लावर्स। डक्स, ड अ ख क इस, डक्स। डेस्क्स, ड ए इस क इस, डेस्क्स। frogs, if ir o g is, frogs. Boxes, b o x e is, boxes. Blouses, b il o a is, e is, blouses. Watches, w a t sh e is, watches. Buses, b a is, e is, buses. Flowers, ducks, desks, frogs, बॉक्सेस, ब्लाउजेस, वॉचेस, बसेस। अब यहाँ पे देखें इस लाइन पे हमारे पास हमने सिर्फ वर्ड के साथ इस लगाया है तो हमारा वो चीज़ जो है वो प्लूरल बन गई है। ठीक है, इस लाइन में जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनके साथ हमने ए इस लगाया है। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनको सिर्फ इस लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ए इस लगाना पड़ता है तो फिर वो प्लूरल्स बनते हैं। ठीक है, नीचे भी हमारे पास यही एक्टिविटी है। ठीक है, इस जो इस ब्लॉक में हमारे पास चीज़ें हैं उनके साथ इस लग रहा है, जो इस ब्लॉक में है उसके साथ ए इस यूज़ हो रहा है। ठीक है, देखें ब एट इस बैट्स, इम एट इस मैट्स, ख अ फ इस कप्स, ठ अ इर च ए इस टॉर्चेस, ब अ इस ए इस बसेस, ग इल ए इस ए इस ग्लासेस। बैट्स, मैट्स, कप्स, टॉर्चेस, बसेस, ग्लासेस। ठीक है, इन वर्ड्स को आप बार बार रीड करेंगे ताकि ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20. On this page we have the topic of adjectives. एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव होती है क्वालिटी। ठीक है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को जो है वो एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, मतलब एक चीज़ अगर
फॉर एग्जांपल एक चीज़ वाइट है तो वो उसकी क्वालिटी है, अगर वो ब्लैक है तो वो उसकी क्वालिटी है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर एक इंसान लंबा है तो उसका लंबा होना क्वालिटी है, अगर वो छोटा है तो उसका छोटा होना क्वालिटी है, अगर कोई पतला है तो वो भी उसको क्वालिटी है, अगर कोई मोटा है तो वो भी इसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो एक चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर कोई जो क्वालिटी पाई जाती है उसको एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव होती है कोई भी सिफ्त, कोई भी खूबी, कोई भी क्वालिटी, ठीक है। तो इस पेज पे हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन कहते हैं किसी भी चीज़ के, जगह के नेम को, ठीक है। तो ठीक है, अब है रीड द फॉलोइंग। रीड करते हैं इस पेज को। आ ह ए फ फ य हैप्पी, इम ए इन मैन, आ हैप्पी मैन। अब ये इंसान खुश है, हैप्पी है, तो हैप्पी जो है वो इसकी क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और मैन जो है ये नाउन है, ठीक है। ये आदमी है, मैन है, तो ये इसका नाम है, ये नाउन है। किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। आ हैप्पी मैन, आ इस एड सैड, इम ए इन मैन, आ सैड मैन, आ हैप्पी मैन, आ सैड मैन। अब इसका हैप्पी होना इस एडजेक्टिव है, इसका सैड होना एडजेक्टिव है, ठीक है। हैप्पी भी एक क्वालिटी है, सैड भी एक क्वालिटी है, तो ये दोनों जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, और मैन जो है ये नाउन है, ठीक है। आ हैप्पी मैन, आ सैड मैन। नेक्स्ट वन इज आ इस इम ए इल इल स्मॉल, इर एट रैट, आ स्मॉल रैट, आ ब ई ग बिग, इर एट रैट, आ बिग रैट, आ स्मॉल रैट, आ बिग रैट, ठीक है। अब इस रैट का स्मॉल होना इसकी क्वालिटी है, इसका बिग होना क्वालिटी है। ये दोनों जो वर्ड्स जो हैं ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है। स्मॉल और बिग दोनों एडजेक्टिव हैं, और रैट जो है ये नाउन है, ठीक है, क्योंकि रैट जो है ये इसका नेम है। आ स्मॉल रैट, आ बिग रैट। आ इश ओ इर्ट शॉर्ट, वो ओ ए इन वुमेन, आ शॉर्ट वुमेन। आ ठ ए इल इल टॉल, वो ओ इम ए इन वुमेन, आ टॉल वुमेन, आ शॉर्ट वुमेन, आ टॉल वुमेन। अब इसमें वुमेन जो है ये नाउन है, और शॉर्ट और टॉल दोनों जो हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, क्वालिटीज हैं, ठीक है। आ इश ओ इर्थ शॉर्ट, फ ए इन ख ई इल पेंसिल, आ शॉर्ट पेंसिल। आ इल ओ इन ग लॉन्ग, फ ए इन ख ई इल पेंसिल, आ लॉन्ग पेंसिल। अब इसमें पेंसिल नाउन है, और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों जो हैं ये एडजेक्टिव हैं, क्वालिटीज हैं, ठीक है। ओके, दोबारा से रीड करते हैं। आ हैप्पी मैन, आ सैड मैन, आ स्मॉल रैट, आ बिग रैट, आ शॉर्ट वुमेन, आ टॉल वुमेन, आ शॉर्ट पेंसिल, आ लॉन्ग पेंसिल। ओके, ये हमारा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का 3 डेज़ का वर्क है, ठीक है। ये 3 पेजेस हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है, याद करना है, और इन तीनों पेजेस को आपने अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है, ठीक है। इन तीनों पेजेस में जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, टॉपिक्स हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप वही हमारा मेथड है, डेट राइट करेंगे, डे राइट करेंगे, टॉपिक राइट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे, ठीक है। नीट क्लीन राइटिंग के साथ राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह आप टॉपिक राइट करेंगे, प्लूरल्स का टॉपिक है, और जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं ये आप अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे, ओके। और इसी पेज 3rd पेज पे भी ऐसे ही हम एडजेक्टिव का टॉपिक राइट करेंगे, और ये सेंटेंसेस जो हैं वो सारे नोटबुक पे जो है वो होमवर्क की शक्ल में राइट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा जो है वो आज का इंग्लिश का लेक्चर था, और वही इंस्ट्रक्शंस हैं पुरानी कि अपनी बुक का और अपनी नोटबुक्स का ख्याल रखना है, और अपनी होमवर्क करते वक्त अपनी राइटिंग का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है, ओके। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।